So good evening everyone. Uh, Welcome to my channel, YouTube channel. I hope uh, you all are enjoying. So after a long time, actually, due to the technical error, I couldn't able to take the classes, and I even couldn't even to record my classes also. So hopefully you have all revised the classes, and the previous classes cannot be uploaded to my YouTube channel because due to technical error. So let's start. We will do a fast revision of the previous classes because that has not been uploaded to the YouTube channel also. So let's do a fast revision of previous class. Just wait. Okay. So let's start. So in previous classes we have understood about matter and its classification. So we do have physical classifications and as well as chemical classifications. In physical classification, we saw that solid, liquid, and gas. Okay, and again in chemical classification, we saw that pure substances and mixture. Again, in mixture in pure substances, we saw that element and compounds. Okay, and elements and compounds. In elements, again we saw that we have three divisions, that is metallic, metalloids, and non-metallic. Okay, and in compound we saw that organic and inorganic. In previous classes we saw that organic, which contains the carbon compounds, inorganic, which doesn't contain the carbon compound. In mixture there is a classification of homogeneous and heterogeneous. Homogeneous, we have a uniform mixture, equal substances, and in a proper ratio and proportion they will be getting mixed. In heterogeneous there will be no proper ratio and proportion of mixture. Okay, so then in solid state we saw that they have a definite shape and size. Definite shape and size. Okay, like example, metal, woods, bricks. Okay, we have definite volume but no definite shape. Okay, example, water, milk, oil, alcohol, everything. Okay, now in gas we have no definite shape as well as volume. Okay, so again we saw that after heating solid it turns into liquid, then again into gas, then again cooling gas it turns into liquid, and again we will cool, then it again get converted into the solids. Okay, then we saw, and then again we show elements. What is elements? Elements containing only a single substance, single elements with a single, mm, it will containing a single matter, like carbon, sorry, like sodium, potassium. It will containing only a single molecules. Okay, but in compounds like CO2, it's a compound. Okay, it's a pure substance but it's a compound compounding containing of two elements. Okay, then again we show the homogeneous mixtures like common salt dissolved in water, sugar dissolved in water, and in heterogeneous a mixture of sulfur and sand which not get mixed up properly. Okay, we saw different types of
Separation of mixtures like sublimations, filtrations, evaporation, crystallization, distillation, then fractional distillation, chromatography. Okay, then again sedimentation and decantations. Okay, now we also have read about the boiling point, freezing point, evaporation, vapor pressure, condensations. Okay, then we have shown, we have seen what is atoms, electrons. Electrons were discovered by the J.J. Thomson. Electrons were discovered by the J.J. Thomson, and J.J. Thomson, and given by the Stoney, and this charge is minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and it is obtained from the cathode rays. Okay, and we have again seen in the proton that it's discovered by the Goldstein, named by the Rutherford, discovered by the Goldstein proton. Okay, and it's a positively charged particles, that is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, and the proton is obtained from anode ray, electron is obtained from cathode ray, and it is obtained from anode ray. The neutrons is discovered by the James Chadwick. Its charge is 0 because it's a neutral, and its relative mass is 1 AMU, atomic mass units, and absolute mass is 1.6 into 10 to the power minus 14 gram. Okay, it contains a 0 charge. Then we have again seen, uh, atomic number, which is represented by Z, and which is equal to the number of electron and the proton. Okay, not plus, it's number of electron is equal to number of proton is equal to number of atomic mass, whereas we have seen that in mass number it's a number of electron plus number of neutrons. Okay, and we can replace electron by proton also because they both are same. Okay, then we have seen isotopes, isobar. What is isotopes? Atoms having the same atomic number but different mass numbers. Okay, whereas in isobars we have seen the elements having the same mass number but different atomic number. So isotopes and isobars. There is in isotones having a different elements but same number of neutrons. Isotones means same neutron number of neutrons. Then isoelectronics, atom, molecules, and ions containing the same number of electrons in it. Okay, then we have seen the wavelength, frequency, wave number, and wavelength is represented by lambda, whereas frequency is represented by hertz. Wave number is represented by the number of wavelengths which can be accommodated in 1 centimeter length. Okay, then we have stopped till here. Then we are again moving to a next topic. So the new class, so the today's topic is chemical bonding. Okay, chemical bonding. So in chemical bonding, we will see ionic bond, which is also called an electrovalent bond. Okay, and covalent bonds, and again we will see the properties of ionic bonds and covalent bonds, then coordinates bonds. Okay, then we have other coordinate bond, sigma bond, pi bond. Okay, so let's see what is electron bond. Electron bond is that which is formed by the complete transfer of one or more electrons from one atom to the other atoms. ठीक है, एक एटम से और एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब वन एटम से दूसरे एटम में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको एटम्स, ठीक है, और एटम एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है, और क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोवॉन्ट है, आयोनिक है, इसमें चार्ज होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोवॉन्ट, तो ही इसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड के, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीबडी हूएवर इज लिसनिंग, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। आप लूशन को मेरे पढ़ाने के बाद आप लूशन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है,
ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। और देखो, आयनिक कंपाउंड का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की दो कंडीशंस है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, और वाटर में ये तभी गुड कंडक्टर होते हैं जब ये आयोनिक बॉन्ड पानी में होंगे तब, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। ओके, देन कोवेलेंट बॉन्ड, a bond which is formed by two same or different atoms by neutral combination of sharing of electrons, ठीक है। जब दो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जो कि एक या एक से अधिक एटम्स दोनों अपने से न्यूट्रली या म्यूचुअली मिलके बने हों, ठीक है, म्यूचुअल होंगे तो वो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर उस प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि उसके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड विच इज हैविंग अ विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर जनरली इनसॉल्युबल, मतलब कि इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में नहीं मिल घुल पाते हैं, ठीक है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में वो लोग मूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट यही है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर। फिर रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ये कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द ग्रुप को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करेंगे तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब रिडक्शन में ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर करेंगे तो वो रिडक्शन कहलाएगा, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेंगे तो वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ ज्यादा इसमें तो है नहीं। फिर आप रिएक्शंस वगैरह है कुछ, ये उतना पूछता नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब हम लोग देखेंगे कुछ अब हम लोग देखेंगे एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस का क्या है कि एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सॉर होता है, खट्टा होता है, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। देखो, अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बेसिस में क्या होता है कि दे आर जनरली नॉट सॉर, मतलब कि थोड़ा खट्टा वो नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है। बट इसका कंडीशन क्या है कि लिटमस रेड टू ब्लू होता है। अब याद कैसे करो, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड इज अ साइन ऑफ अ डेंजर एंड एसिड्स आर डेंजर, इसलिए वो दिखा देगा कि डेंजर में है, ठीक है। इसको याद करेंगे, ओके। एंड इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद कुछ हम देखेंगे कि साइट्रिक एसिड किस में मिलता है, लेमन और ऑरेंजेस में मिलता है। लैक्टिक एसिड मिल्क, सॉर मिल्क में मिलता है,
जो दूध फट जाता है। फिर ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो किसमें मिलता है हमें, रैंसिड बटर में मिलता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में पूछता है, एसिटिक विनेगर में मिलता है, मैलाइक एसिड एप्पल्स में मिलता है, स्टेरिक एसिड फैट्स में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो वुडन वो सॉरी कार्बोनिक सोडा वाटर्स एंड एसिलेटेड ड्रिंक्स में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखेंगे कि और इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या है। फिर जो कॉमन हम लोग ये रखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इट्स मोनली फाउंड इन रेन वाटर, नाइट्रेट्स इनटू सॉइल। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, फिर बोरिक एसिड जो होता है वो जो एंटीसेप्टिक यूज होता है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। ठीक है, फिर एसाइट्रिक एसिड भी यूज एज एजेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, एसिटिक एसिड को भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे बेसिस। बेसिस में क्या होता है कि ये बीटर इन टेस्ट, ये क्या होता है कि सोर इन टेस्ट। ऐसे क्या होता है कि सोर होता है, ये बीटर होता है, मतलब कि कड़वाहट होता है। ओके, बीटर इन टेस्ट, ये रेड लिटमस ब्लू टू ब्लू हो जाता है। ठीक है, फिर इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जो कि उल्टा था एसिड वाले केस में। इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर उसका पीएच होता है, पीएच लेवल होता है। तो लेमन जूस का 2.5 के खट्टा है। देखो पीएच लेवल एक ये पैरामीटर होता है जो कि 7 नॉर्मल होता है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो ना ही बेसिस ना ही एसिड होता है, वो उसको हम लोग ये लेते हैं। इधर के साइड को हम लोग एसिड बोलते हैं, जो इधर पीएच 7 से ये इधर को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं। तो लेमन जूस, वाइन, ये सब क्या है कि ये सब पीएच वैल्यू, एप्पल जूस, विनेगर, यूरिन, कॉफी, सलाइवा, ये सब हम लोग का क्या है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 है। ठीक है, बट देखो सलाइवा अगर लेस देन 7 इज नॉट अ एसिड एक्चुअल। एसिड 3 के नीचे अगर जाओगे तो मैक्सिमम उसको एसिड मानते हैं, नहीं कि 7 के नीचे चला जाए तो एसिड मान लेंगे। ठीक है, बट उसमें एसिडिटी का वो आ जाता है, एसिड का ये आ जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। ठीक है, ओके, देन वी हैव लाइमस्टोन, फिर ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टिंग में ये सब कॉमन चीजें। आप लोग एक बार लूसेंट देखो, मेरे पढ़ाने के बाद यहीं पे खत्म नहीं होता, आपको एक बार लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो रेफरिंग लूसेंट टू टीच यू, और दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू हैव टू गो थ्रू लूसेंट, और जो बता दें कि लूसेंट से एक बार थ्योरी पढ़ के उसके ऑब्जेक्टिव वाले जो बुक है उसको ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, बस आपका साइंस खत्म हो जाएगा, मतलब साइंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब इतना नहीं पूछता। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, फेरस। ठीक है, कभी नहीं पूछता फेरस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो FeO को बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, Fe3O4 को बोलते हैं। फिर फेरस सल्फेट किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट किसको बोलते हैं, FeSO4.7H2O, इसमें पानी भी मिला रहता है। ठीक है, फिर ब्रोमाइन Br2, क्लोराइन Cl2। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट सेलॉयज है इसमें, देखो पोल्यूशन में आपको रेड कलर का बॉक्स में आपको दिया होगा बहुत सारा चीज। ठीक है, उसके आप देख सकते हो। पोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लास्ट में, वो आप लोग एक बार याद कर लो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैटर्स, गैल्वेनाइज्ड इज कोटेड विद जिंक एंड ऑल दोस। ठीक है, हेवी वाटर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें इससे आपका हो गया खत्म केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे MCQ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमें एग्जाम में MCQ ही करना है। ठीक है, तो हम MCQ ही मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। तो मैं फिजिक्स का जो क्लास लिया था, फिजिक्स का क्लास, मैं कुछ MCQ फिजिक्स के ऊपर कराऊंगा अभी। ठीक है, और कुछ MCQ मैं केमिस्ट्री के ऊपर कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, वो भी अच्छे से।
तो एमसीक्यू करने के लिए आपको होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, आप एक बार, अगर आपके पास सामने बुक है तो अगर एमसीक्यू का, तो आप एक बार बोल सकते हैं, ऐसे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स कितने हैं? आंसर क्या होगा? 7। ठीक है। इसमें से कौन सा फंडामेंटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स? मीटर, लीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। हमें पता है टाइम इसका है, इसका केजी, इसका मास का है, इसका लेंथ का है, लीटर किसी चीज का नहीं। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। मुझे तो ये आरआरबी टीसी 2005 में आ चुका है ये क्वेश्चन, बीपीएससी 2016 में भी आया है, एनडीए 2017 में भी आया है। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? पैरालाइटिक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर एंड सोलर डे। इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? तो क्या है, बताओ आप। पैरालैक्टिक सेकेंड। ओके, पैरालैक्टिक सेकेंड इज नॉट अ काइंड ऑफ यूनिट ऑफ what? Time. Then we have 1 ferrimeter. 1 ferrimeter means 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? कैंडेला। ठीक है। फिर पार्सेक, आई थिंक ये पार्सेक है या पार्सेक इज यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है। फिर 1 लाइट ईयर इज इक्वल, देखो वो पार्सेक जो है ना, वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा है, 2000 में पूछा है। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर? 10 to the power 16 मीटर। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा है कि मैच द कॉलम। देखो अगर आपके पास बुक है ना, आप सामने, अगर मैं जैसा पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको समझाते हुए चला जाऊंगा क्या है। ठीक है। तो हाई स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ हम लोग किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ मैंने बताया था कि एंगस्ट्रॉम में यूज करते हैं। ठीक है। प्रेशर, एनर्जी एंड हाई स्पीड। हाई स्पीड ऑब्वियसली जूल में, हाई स्पीड ऑब्वियसली मैक में यूज होता है, सुपरसोनिक, हाई, ये सब। ठीक है। और उसके बाद ये प्रेशर जो है पास्कल में यूज होता है, एनर्जी जो जूल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, जल्दी बताओ कोई। इलेक्ट्रिक एम्पेयर किसका चार्ज है, किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक से, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। ये आरआरबी कोलकाता एएसएम में पूछ चुका है 2005, सीएससी पूछ चुका है 2017, आरआरबी 2018 में भी पूछ चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद एसआई यूनिट्स ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसआई यूनिट्स ऑफ द यंग मॉड्यूलस इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? एसआई यूनिट्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, क्या होगा? पास्कल। ठीक है। क्यूरी इज यूनिट ऑफ, ये सब लिखते चले जाना। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, बताओ। रेडियो एक्टिविटी। डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, ये सब एसएससी के क्वेश्चंस है, ये सब आरआरबी के क्वेश्चंस है। ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है।
डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, बताओ बताओ, बोलते हैं ना 20 डेसिबल, 16 डेसिबल साउंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इजी है, कूलम 18 का। ठीक है, ये 18 का पूछ चुका है, 19 आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका है, अभी पूछा है शायद। ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ एंड सन, one astronomical unit is the difference between the distance between earth and sun. ठीक है, internal forces can always be balances, तभी तो हम चल पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस का सवाल है। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर द एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियाई, न्यूक्लियर रेडियाई का सबसे सुटेबल यूनिट क्या हो सकता है? फर्मीमीटर, सबसे छोटा यूनिट फर्मीमीटर। अब हम पूछे पढ़े थे ना कि 1 फर्मीमीटर कितना होता है, बताओ कमेंट सेक्शन में जवाब दो। 1 फर्मीमीटर कितना यूज होता, कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद which of the following is expressing the Fermi हो गया, which of the following quantities does not have a units, कौन सा यूनिट नहीं? स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेस एंड प्रेशर, किसके यूनिट्स नहीं होते हैं? स्ट्रेन, रिमेंबर स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने फिजिक्स का डिस्कस किया। होपफुली हम लोग इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन नोटबुक, और उसका एक सेपरेट फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का नोट्स बना लेना। साइंस यहीं से अच्छा हो जाएगा थ्रू एमसीक्यू एंड थ्रू कुछ लेक्चर क्लासेस। सो आप फॉलो करते रहिए इसको। ठीक है, और क्लास टाइमिंग डेली रहेगा 9 to 9:30 और रहेगा, आधे आधे घंटे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो so we have end up the we are winding up the class here. Today's in the class we have read about the physics, little bit concept of physics, and we have discussed some question answers of physics which we have earlier read in the previous classes, and also we have done some chemistry classes also. Hopefully if you are enjoying the classes, if you're learning something, please do like and subscribe and share it. Okay, and if you have any query, uh, text me on my telegram number 8447635230. okay, you can WhatsApp me on same telegram number 8447635230. okay, thank you.